today we have Dr. Ankit here. He's a renowned psychiatrist and he is committed himself to help solve the mental wellness illness problems in the country, which is so prevalent now. He has won a lot of awards and recognition, including recognition by the Asia Book of Records and the India Book of Records for his campaigns on suicide awareness. So today he's going to talk about how to recognize signs of depression and how to deal with it. Again, Dr. Ankit, thank you very much for taking time out of your schedule to take this session with our tribe members, and I'm sure all of us will benefit highly from this session. Thank you. Thank you, RTG and Ekam Online, for inviting me at your platform and for taking such a great initiative to help people and to make them aware that what actually depression looks like and what depression is. So from bottom of my heart, I thank you, RTG and Swapnil. So you guys have been in constant touch with me to make this program a successful one. Although I'm not well today, but I still chose to be part of this session. So now let's start. Yes. My question to everyone, whoever is watching me this live session, is let's talk about depression and what do you guys understand about what depression is? Anyone? Hello? Everyone can participate, it's open. We can hear you, Dr. Ankit. Maybe some those. Yeah. Yes. Is my screen visible? Yes. Yes, it is. Yes. So now I've just made a small PPT type presentation to make you more engaging, make the session more engaging and give maximum knowledge out of whatever I can provide to you about depression in short slide. So depression. Now before talking about depression, I will be talking about what is normal mood and what is average mood. So the state of not feeling particularly euphoric or sad, except under the right circumstances. For example, if something good happens, one would feel happy for a while, and if something bad were to happen, one would feel sad or down for a while. So if feeling sad for some short span of time, it doesn't mean that you are in depression or you are depressed. It doesn't mean that you are going through depression as a mental illness. See, our mood constantly keeps on changing with time, with situations, with circumstances, and because of that, our mood may have very variable up and rises. So doesn't mean that one is लोगों को पता है ये they are very much in dilemma कि थोड़ा भी उनका मूड खराब होता है तो उनको लगता है कि वो डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं. तो एक्चुअली मैं इस प्रेजेंटेशन के थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि कांस्टेंट या फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑफ मूड डजंट डिफाइन depression or a mental illness. Now let's get on to what is depression or iski how today what is the prevalence rate in the society. So depression is 10 to 15% worldwide. It has its prevalence, and 15.9% of people in India, they are suffering from depression today. So it is a big number. आप अपनी हमारी population का अगर आप 15.9% करेंगे तो I think more than 15 these are the numbers which are currently present on Wikipedia or Google, but I think according to me इससे भी कई ज़्यादा लोग आज depression का शिकार हैं और वो uncountable है because they do not come up, they do not go and seek help from a psychiatrist or from doctors. तो इसलिए वो नंबर अनअकाउंटेबल जा रहा है और डिप्रेशन की वजह से ही बहुत सारे लोग आज
सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेशन की वजह से बहुत सारे लोग अकेले हैं, लोनली है, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर का शिकार हो रहे हैं। तो हमें उसी को जानना है कि वाई पीपल आर डूइंग इट, एंड थ्रू दिस सेशन में यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपको डिप्रेशन है तो आप कैसे पहचानेंगे कि आपको डिप्रेशन है। अगर आपको डिप्रेशन है तो डिप्रेशन का असल में मतलब क्या होता है, हम इस सेशन के थ्रू वो जानेंगे आज। तो ये तो मैंने आपको स्टैट्स बताए हैं कि 15.9% है इंडिया का प्रेवलेंस रेट। सो डिप्रेशन नाउ डेज आफ्टर द कोरोना time, it is the leading cause of suicide. It is the leading cause of today's disaster in mental illnesses. It is the leading cause of disease and burden, and it is expected to be burden till 2030. Right. So now today, up to 35 to 40% of moderate depression cases, they are attributed to treatment resistant depression. मतलब जो भी लोग आज डिप्रेशन से सफर कर रहे हैं एक्चुअली, और जो डॉक्टर को हेल्प नहीं सीख कर रहे हैं, कुछ टाइम के बाद उनका डिप्रेशन इतना सीवियर हो जाता है, इतना सीवियर हो जाता है कि वो कोई भी आप ट्रीटमेंट देंगे उससे वो ठीक नहीं हो पाते। They are resistant to that treatment, so it becomes very challenging for a psychiatrist, for a doctor to give them instant relief. So now we move Dr. Ankit, now we move on कि डिप्रेशन होता कैसे है। हम ये जानते हैं कि डिप्रेशन कैसा होता है। तो डिप्रेशन में 3 हमारे न्यूरोकेमिकल्स हैं, एक डोपामिन, एक नोरेपिनेफ्रिन और एक सेरोटोनिन। अगर डोपामिन कम है, जो कि हमारी अटेंशन, मोटिवेशनल और प्लेजर रिवॉर्ड में मदद करता है, तो आपको डिप्रेशन हो सकता है। आपका अगर सेरोटोनिन कम है न्यूरोकेमिकल, तो आपको डिप्रेशन हो सकता है। और अगर आपका नोरेपिनेफ्रिन, जिसमें कि आपका अलर्टनेस और एनर्जी आती है, अगर वो कम है तो आपको डिप्रेशन हो सकता है। तो अगर आपको इंस्टेंट आपको ये देखना है कि अगर आपको एनर्जी कम रह रही है और आपकी अलर्टनेस कम हुई है और कितने टाइम से ऐसा हो रहा है, जैसे स्पैन होता है 15 to 20 डेज या 30 डेज तक, अगर ऐसा आपको लग रहा है तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं उसके साथ आपका मूड भी वेरी कर रहा हो, और आपका मूड उदास हो, या आपका एपिटाइट डिक्रीज हो, या आपको थकावट ज्यादा हो रही हो। तो ये सारे सिम्टम्स, जिसमें आपकी स्लीप भी हैम्पर हो रही हो, तो ये सारे सिम्टम्स अगर एसोसिएटेड हैं तो आपको तुरंत एक कंसल्टेशन फ्रॉम अ साइकियाट्रिस्ट हु एक्चुअली कैन डायग्नोज यू एज दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम अ मेंटल इलनेसेस और नॉट, उससे आपको एक कंसल्टेशन लेनी चाहिए और वो आपको बेहतर बता पाएंगे। तो ये तो मैंने न्यूरोबायोलॉजी बहुत ही छोटे में बताया है। नाउ तो एक्चुअल में हमारी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज ICD-10 के हिसाब से क्या सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन को डायग्नोज करने के, या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं कि जिससे हम पता लगा सकें कि अगर हमें ये सिम्टम्स है तो हमें डिप्रेशन है। तो अगर हमारी कंसंट्रेशन और अटेंशन कम है तो हो सकता है हमको डिप्रेशन है। अगर हमारी सेल्फ एस्टीम या सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है, अगर हमें आइडियाज ऑफ गिल्ट है, अनवर्दीनेस है, कि मैं अनवर्दीनेस मतलब कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरे से कुछ नहीं होगा। अगर हमें ब्लीक एंड पेसिमिस्टिक व्यूज ऑफ फ्यूचर, कि आगे मेरा कुछ नहीं होने वाला, मैं तो क्विट कर देता हूँ। तो अगर हमें आइडियाज ऑफ सेल्फ हार्म आता है, सुसाइड आता है, या अगर हमारी स्लीप डिस्टर्ब होती है, एपेटाइट तो नहीं रहती है, अगर हमारा मूड जो है परसिस्टेंटली लो रहता है, हमें अकेला रहने का मन करता है, किसी चीज में मन नहीं लगता है, अगर हमें ज्यादा थकावट होती है, तो अगर ये सारे सिम्टम्स आपके अंदर हैं तो आपको देखना चाहिए। इसमें से अगर आपके कुछ भी सिम्टम्स, 4 से 5 सिम्टम्स मिलते हैं, तो आपको एक बार जाके एक साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। और अगर इसका टाइम ड्यूरेशन डिप्रेशन का 1 मंथ का होता है, अगर ये 15 डेज से 1 मंथ तक का परसिस्ट कर रहा है, तो हो सकता है कि आपको डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं या ऑनसेट हो रहा है। तो आप एक साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए, और आप ऐसे यू कैन सीक हेल्प
for depression. So ये मैंने बहुत आपको छोटे में बताया है कि क्या में रह सकते हैं कि अगर ये इनमें से कुछ भी क्राइटेरिया आप में हो रहा है तो आप जाके तुरंत एक कंसल्टेशन लीजिए. Now we will talk about Ekam. Like Ekam is a brand which providing smell and good fragrances everywhere. Like I've checked your profile. So even according to studies, it has been shown that sense of smell plays an important role in the physiological effects of mood, stress, and working capacity. Studies have also revealed that various fragrances affect spontaneous brain activities and cognitive functions, which are measured by EEG. तो EEG में आप देखेंगे अगर आपकी स्मेल बहुत अच्छी है, अगर आपका ऑरा बहुत अच्छा है, तो आपकी EEG भी में भी एक्टिविटीज में भी कॉग्निटिव फंक्शनिंग में भी अच्छा चेंजेस आएंगे और आपकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग बेटर होगा. So now we come that how do we treat depression? Depression can be treated by medications, of course, and therapies also, like cognitive behavioral therapy. Medications आ जाती हैं जो कि एक psychiatrist prescribe कर सकते हैं. Other than these, more importantly, I want to add that depression can be treated first of all by exercise. अगर आप regular exercise करते हैं, अगर आप 1 घंटा अच्छे से पसीना बहाते हैं, तो I think you can beat depression. You can overcome it. You can because जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके जो न्यूरोकेमिकल्स होते हैं ऑटोमेटिकली अपलिफ्ट हो जाते हैं और आपका मूड इनहैंस हो जाता है. एंड यू हैव your even your cognitive functioning they it increases and it helps you provide solution in any stressful situations. तो अगर आपकी कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप देखेंगे एक्सरसाइज के दौरान आपको बहुत सजेशंस आएंगे, बहुत अच्छे आइडियाज आएंगे, पॉजिटिव थॉट्स आएंगे और उससे आप डिप्रेशन से कोशिश कर सकते हैं. अगर आप एक्सरसाइज करते रहे तो आप डिप्रेशन से दूर रह सकते हैं और आप अच्छा परफॉर्म या स्ट्रेस को दूर रख सकते हैं बाय एक्सरसाइज. दूसरा है, अगर आपका डे अच्छे से प्लान नहीं, अगर आप आपकी एक्टिविटीज जैसे कि डे स्ट्रक्चरिंग अच्छी नहीं है, अगर आप काम पे नहीं जा रहे हैं या घर में यू टेकिंग लीव्स एंड स्टेइंग एट होम, स्किपिंग स्कूल्स, तो बच्चे जैसे आजकल स्कूल्स मिस कर देते हैं, या आपका दिनचर्या अगर ये स्ट्रक्चरिंग प्रॉपर नहीं है, अगर आप प्रोडक्टिव नहीं है, तो भी आप डिप्रेशन से अगर आपका प्रॉपर नहीं है तो आपको डिप्रेशन होने के चांसेस ज्यादा हैं. और अगर आपकी डे स्ट्रक्चरिंग अच्छी है, अगर आपका हर मूव वेल डिफाइंड है, जिसमें कि एक्सरसाइज हो, जिसमें कि 2 लीटर्स ऑफ वाटर हो, जिसमें कि सन एक्सपोजर हो, विटामिन डी एक्सपोजर आपको धूप से मिलेगा, जिससे कि आपका मूड अपलिफ्ट होगा. 15 मिनट्स ऑफ रीडिंग बुक को 15 to 30 मिनट से स्टार्ट करेंगे. अगर बुक नहीं पढ़ सकते तो आप यू कैन लिसन टू मोटिवेशनल वीडियोस, you can listen to motivational songs. तो अगर ये well defined strategies नहीं होंगी तो आप डिप्रेशन से you are more likely to have depression and more likely to be attacked by the stress you are currently going through at your workplace or in your offices or at your school. So yes, this was all about depression in very short presentation. Anything you want to ask about it, anything you want to know about it, so you're most welcome. I have put one question, Dr. Ankit, in the chat box. Hello. Yes, can you hear me? My voice is not good. I have just put a message in the chat box. Ma'am, just please, can you read me out your message? Yeah, wait, just wait. I'm opening a message. Who message received?
Hello. Yeah, I can read it out for you, Dr. Ankit. Swapnil is asking, there's a taboo in the society that if you go to the psychiatrist, you're mentally ill. Is that true? Yeah, I just got the messages. I think there's problem with loading time. And yes, there is a taboo in the society that if you go to a psychiatrist, you are mentally ill. Is that yes? Definitely, it is true. Uh, इसी टैबू की वजह से लोग एक साइकेट्रिस्ट को नहीं दिखा पा रहे हैं, इसी टैबू की वजह से लोग आज सुसाइड कर रहे हैं, इसी टैबू की वजह से लोग आज दे आर scared to visit a doctor, especially a mental health professional. This is very true. और इसीलिए इस टैबू को दूर करने के लिए आई एम trying my best by short videos on Instagram, by doing online sessions with, like, for example, with Ekam also I'm doing a session. तो इसी टैबू को दूर करने के लिए मैं बहुत सारी अवेयरनेस कैंपेन्स हमें सबको मिलके, जैसे नॉट जस्ट डॉक्टर्स बट इवन दी सोसाइटी, जिसमें कि एवरीवन इज इंक्लूडेड, एवरी प्रोफेशनल इज इंक्लूडेड, उन सबको ये बताना चाहिए, उन सबको मैं भी बताना चाह रहा हूँ इस प्रेजेंटेशन से कि seeking help for mental health is normal like any other illnesses. अगर आप पैर टूटने पे एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाते हैं, अगर आपका ब्रेन में क्लॉट आता है तो एक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाते हैं, अगर आपको फीवर होता है तो एक मेडिसिन डॉक्टर को दिखाते हैं, वैसे ही अगर आपके माइंड में कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आपके माइंड में कोई न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस होता है, तो आपको एक साइकियाट्रिस्ट को जरूर दिखाना चाहिए। इस टैबू के साथ-साथ I would also like to add, Swapnil ji, that taboo is not just associated with going to a psychiatrist, it is also associated with going to, it is also associated for having those medications, for having psychiatric medication. उसके साथ भी बहुत बड़ा टैबू जुड़ा हुआ है। लोगों की ये टैबू है कि हम ये दवाई लेंगे तो हमें इनसे नींद आएगी, हम ये दवाई लेंगे तो हमें इनसे नशा हो जाएगा, हम ये दवाई लेंगे तो ये छूटेगी नहीं हमसे और ये दवाई हमें पागल कर देंगी। तो ऐसे-ऐसे वेरियस टैबूज़ हैं जिसको आज सोसाइटी, कुछ सोसाइटी एक्नॉलेज कर रही है, कुछ सोसाइटी इज़ स्टिल फाइटिंग विद दीज़ टैबूज़ एंड they fail to go to a psychiatrist and taking help for mental health. Got it. Is there any other questions? Any other question? It's an open platform, guys. You can ask anything. Emptiness. Someone has written emptiness. I only see 3 questions. One I have answered. The second is emptiness. Okay, I'll tell about. I couldn't get what he or she meant from emptiness, but I will talk on emptiness. Emptiness is, अगर आपको खालीपन लगता है, अगर आपको अकेलापन लगता है, अगर आपको you feel like remaining to self, you feel like being introvert, then definitely it is better to open up. अगर आप शेयर नहीं करेंगे, अगर आप ओपन अप नहीं करेंगे और अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तो वो एम्प्टीनेस आपको और ज़्यादा परेशान करेगी और ज़्यादा डिप्रेशन में डाल देगी। It can also lead to severe depression. So emptiness can only be meant, it can be dealt by sharing and opening up. Either you open up to a psychiatrist, either you open up to your friends, either you open up to your family members. So this is how you can deal with it. And I must tell you, I also request everyone whoever is watching me through this session, that अगर आपको लगता है कि आपका कोई भी फ्रेंड, कोई भी पेरेंट, कोई भी आपके कोई भी रिलेटिव, कोई भी आप जिसको जानते हैं, अगर आपको लगता है वो थोड़ा चुप रह रहा है, अगर वो आपको लगता है थोड़ा गुमसुम है, या उसके थॉट में कोई भी अजीब बात आ गई है या कुछ भी उसने वियर्ड बोला है, तो आपको जरूर उन सिग्नल्स को पहचानना है। अगर आप उन सिग्नल्स को तुरंत कैच कर लेते हैं तो यू कैन हेल्प देम एंड यू कैन बी देयर सपोर्ट। तो अगर कोई भी नेगेटिव बात करता है, कोई भी है, कोई भी अकेले रहने की जिद करता है, कोई भी कोई भी अपना रूम बंद करके रहना चाहता है,
तो एज अ पेरेंट, एज अ फ्रेंड, एज अ अटेंडेंट, आपको एज अ गाइड, आपको उनको मोटिवेट करना है, आपको उनके साथ रहना है एक्चुअली। आपको उनको, अगर उनका मन नहीं भी है आपसे बात करने का, तो भी आपको उनके आस-पास ही रहना है, आपको थोड़ा वॉचफुल रहना है और आपको उसको जब वो काम डाउन हो जाए तो उससे पूछना है व्हाट द प्रॉब्लम इज़। अगर हम एवरी टाइम, अगर हम इफ वी प्रोवाइड आवर ईयर, इफ वी प्रोवाइड आवर सपोर्ट टू एनीवन हू इज़ इन लो फेज, टू एनीवन हू इज़ आइसोलेटिंग हिम और हरसेल्फ, तो अगर हम उनको सपोर्ट देंगे, अगर उनको दूर रह के भी थोड़े से डिस्टेंस पे देखते रहेंगे, वॉच करते रहेंगे, तो आई थिंक सुसाइड और एनी काइंड ऑफ मेंटल इलनेसेस कैन बी प्रोहिबिटेड एंड इट कैन बी स्टॉप्ड। सो ये सबसे, आप सबसे रिक्वेस्ट है। Dr. Ankit, I would like to ask you one thing. If a person is isolating or is keeping quiet, मुझे ये डर लगता कि अगर मैं जाके पूछूं या बार बार interfere करूं, तो that person might get angry. So how do we deal with that? मैम, वेरी गुड क्वेश्चन। मैं इसी क्वेश्चन का मैंने इससे पहले भी थोड़ा आपको आइडिया दिया था, बट मैं फिर भी बता देता हूँ। अगर कोई, इफ समवन वांट्स टू बी अवे फ्रॉम यू, अगर वो थोड़ा अकेला और अपने स्पेस में रहना चाहता है, तो पहले ये देखिए कि जो पहले वो स्पेस में रहना चाहता था, क्या वो स्टार्टिंग से ही ऐसे ही और शी डिमांड्स हर स्पेस, या ये अचानक वेरिएबल आया है 1 या 2 दिन में कि मुझे स्पेस ज़्यादा चाहिए या मुझे अकेला छोड़ दो। या तो उसका कारण हो सकता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है या इरिटेबल है या परेशान है। तो अगर वो बार-बार ज़िद करता है स्पेस लेने की फॉर सम टाइम, ओके, लीव देम बाय देयर ओन, लेकिन बी वॉचफुल, है ना? उनको देखते रहिए, आप उनको एक्नॉलेज करिए, उनको उनका थोड़ा टाइम दीजिए टू बी आउट ऑफ दैट फेज़ एंड ट्राई टू टॉक। छोटे-छोटे कम्युनिकेशंस, नॉट रिगार्डिंग द सेम सिचुएशन, मतलब कि आप क्यों ऐसे हो, आप परेशान क्यों हो, आप चुप क्यों हो, ऐसे मत बोलिए। कोई भी अलग इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन से उनका रेपो बनाइए, उनसे बात करने की कोशिश करिए। जब वो एक कम्फर्ट ईज़ ट्राई हो जाएगा छोटे-छोटे कम्युनिकेशन से, तब वो अपने आप ओपन अप करेंगे, या तब थोड़े टाइम बीतने पे आप उनसे पूछ सकते हैं कि अ, आप बताइए, आप ऐसे, ये लाइक व्हाई आर यू सो लो, या व्हाई डू यू वांट टू स्टे अलोन, या व्हाई व्हाई आर यू व्हाई 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 यू वांट टू आइसोलेट योरसेल्फ। तो तब आप उनसे पूछ सकते हैं, देन यू कैन टॉक। पहले एक कम्फर्ट उनको दीजिए, और अपना, जब वो एक कम्फर्ट में आ जाए छोटे-छोटे इनडायरेक्ट क्वेश्चन या कम्युनिकेशन से, उस कम्फर्ट के बाद वो आप एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाउ आई कैन हेल्प यू, या क्यों परेशान हो, या अकेला क्यों रहना चाह रहे हो। इफ देयर इज समथिंग, प्लीज शेयर इट विद मी, आई विल नॉट टेल इट टू एनीवन, इट विल बी विद इन माई सेल्फ, विद इन अस। Thank you, Dr. Arika, you want to So say Yeah. something? there is one question, apart from exercises, any other way to overcome with emptiness and laziness? सी मैम, नहीं, इट इज बाय सौरभ। सी, देखो सौरभ, देखो, अदर देन एक्सरसाइज, मैंने आपको बोला है कि आप एक रूटीन सेट करिए। अगर आपकी लाइफ में गोल नहीं होगा, अगर आपकी लाइफ में मोटिवेशन नहीं होगा, अगर आपकी लाइफ में स्ट्रक्चरिंग नहीं होगी, तो आप एनी हाउ आप लेजी रहेंगे, एनी हाउ आप खाली रहेंगे, आप यू विल बी फुल ऑफ procrastination, you will be full of negativity, you will be full of stress. तो अगर आपका डे स्ट्रक्चरिंग है, अगर आपका वेल डिफाइंड डे है, अगर आपका हर मूड डिफाइंड है, तो आई थिंक, और अगर आपके पास काम है, तो आई थिंक एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। अगर आपको फिर भी इन सब चीज़ों में दिक्कत आ रही है ओवरकम करने में, तो देन यू कैन टेक अ हेल्प फ्रॉम अ साइकियाट्रिस्ट, एंड वी कैन डेफिनेटली हेल्प यू विद हाउ टू go ahead and in coming days. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि साइकियाट्रिस्ट आर नॉट जस्ट फॉर मेडिकेशन, साइकियाट्रिस्ट काउंसलिंग भी करते हैं, साइकियाट्रिस्ट आपको डे स्ट्रक्चरिंग भी करते हैं, साइकियाट्रिस्ट आपको मोटिवेट भी करते हैं। तो सिर्फ एक साइकियाट्रिस्ट का ये धारणा है कि वो तो सिर्फ दवाई देंगे, तो ऐसा नहीं है।
हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट भी काम करते हैं। तो अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, कुछ भी आपको, लाइक इवन हम मैरिज काउंसलिंग, अगर फैमिली कपल काउंसलिंग और बहुत सारी स्टूडेंट काउंसलिंग, तो ये सारी काउंसलिंग भी हम लोग करते हैं, साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट मिलकर करते हैं या साइकेट्रिस्ट भी करते हैं। तो आप हम सब आपको ओरिएंटेशन देते हैं, आपको एक रैशनल थिंकिंग प्रोवाइड करते हैं, तो आप हमें उससे अवेल कर सकते Hello, sir. Yes. I have a question. May I ask? हैं। यस, Sir, my name is Harika. I am, I want to become a doctor. So I took long term for past 4 years. And from the year 2020, I thought I'm recognizing the symptoms of depression lightly. My parents are very supportive. So we went to doctor and he just treated me so badly. I mean, I was so humiliated. He just so belittled me. I got the trauma and I'm unable to go to any other doctor. Like there are some doctors like that. He is a psychiatrist himself. He just so humiliated me. I am left with the trauma and I'm unable to go to any other doctors. So is there any solution, sir? ma'am, thanks for bringing it up, first of all. Second of all, I'm very sorry on behalf of the psychiatrist, from the other psychiatrist on behalf of them. And I'm third of all also very sorry from a doctor as a community. If you felt so humiliated, I'm really sorry for that too. Fourthly, मैम, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके डॉक्टर आपको अच्छा नहीं ट्रीट कर पा रहे हैं या मिसबिहेव कर रहे हैं या ह्यूमिलेट कर रहे हैं, तो यू हैव ऑलवेज एन चॉइस टू लीव एंड नेवर गो बैक। तो अब उसके अलावा आई कांट प्रोवाइड यू एनी अदर सॉल्यूशन। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है फ्यूचर में भी, तो इट्स बेटर यू हैव द चॉइस टू मेक, you have always the choice, that is to make the best choices. Yes, sir. So इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि अगर उसने ऐसा करा है तो मे बी ही माइट बी गोइंग थ्रू समथिंग रॉन्ग, मतलब उसके साथ भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, और कभी कभी आई जस्ट ऐड, तो ये पार्ट प्रेजेंटेशन का पार्ट नहीं है, लेकिन आई विल टेल यू वन इंसिडेंट। कभी कभी जी ऐसे प्रॉब्लम आती हैं कि उस प्रॉब्लम में हमें लगता है कि यार सामने वाले ने ऐसा क्यों करा, ये तो इसने मेरे साथ बहुत गलत करा। तो और उससे उस सिचुएशन से हम परेशान हो जाते हैं यार, उसको सोच सोच के कि यार मैं तो इसको अपनी दोस्त मानती हूँ और इसने मेरे साथ इतना गलत कर दिया। तो मैं आपको रीका जी एक एडवाइस देता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ किसी ने आपके साथ धोखा किया है या समवन इज इल ट्रीटेड यू, तो आपको ये सोचना चाहिए कि मे बी ही और शी might be going some stress, might be going through some problems which came out to be in form of this kind of action towards me, right? तो अगर आप ये एम्पैथाइज कर लेंगे ना कि वो बेचारा परेशान है, उसने ये ऐसा करा होगा क्योंकि वो इतना परेशान है कि he or she couldn't help themselves, right? तो तब आप इतना परेशान नहीं होंगे कि सामने वाले ने आपके साथ ऐसा क्यों करा या आपके साथ गलत क्यों करा। Yes. तो तब आप एक कंफर्ट में आ जाएंगे, चलो यार कोई बात नहीं, उसको मदद की जरूरत है, उसने करा होगा क्योंकि वो मेरे से भी ज्यादा परेशान है, मैं तो मेरे साथ तो क्या ही करा, कुछ भी नहीं करा। तो अगर आप उससे एम्पैथाइज कर लोगे, अगर आप उसको ये सोच लोगे कि मे बी ही और शी इज डूइंग सो बैड बिकॉज ही और शी इज इन टू सम प्रॉब्लम और सम स्ट्रेस, तो आप इतना हर्ट नहीं होंगे, आप इतना उसमें मायूसी में नहीं जाओगे, आप डिप्रेस। Yes. डॉक्टर जी मैम। आपने प्रेजेंटेशन में कॉग्निटिव थेरेपी बिहेवियर थेरेपी के बारे में मेंशन किया था, so is this something that these are exercises, I've seen a few workbooks and all on this, so is it possible for people to do this all by themselves if they feel there is certain areas of
stress in Ma'am, their ma'am, nice question. Cognitive behavioral therapy people cannot do by themselves. They need a psychologist or a psychiatrist, जिसमें कि सेशंस होते हैं, जिसमें कि आपको टास्क दी जाती है, जिसमें कि आपको रैशनल इरेशनल थॉट से कैसे कन्वर्ट करना है उसके बारे में समझाया जाता है, आपके बिहेवियर को मॉडिफाई किया जाता है, आपको छोटे छोटे टास्क से सिचुएशन समझ के आपको बेटर सिचुएशन में डाला जाता है। तो ये मेरे हिसाब से ऐसा नहीं लगता कि अगर आप खुद करना चाहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप खुद कर पाएंगे, क्योंकि आपको वो आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में थॉट्स की ये लड़ाई होती है कि यहाँ मैं सही था या गलत था, या मुझे जब आप किसी भी स्ट्रेस से डील कर रहे होते हैं तो आपको समझ ही नहीं होती कि क्या सही है क्या गलत है। तो जब तक आप किसी से शेयर नहीं करेंगे, जब तक आप किसी प्रोफेशनल को दिखाएंगे नहीं, तब तक आपको एक सही सॉल्यूशन या एक सही कॉग्निशन नहीं मिलेगा। Anything else? Dr. Ankit, I have another question. My eldest sister, she has been diagnosed with obsessive compulsive disorder. Right. तो जिस कारण मतलब हम लोग को बहुत दिक्कत होता है, because she has this problem of repeating things. Like एक चीज जो बोलनी है उसको 4-6 बार, मतलब she does it in loops of even numbers. So lot of times मतलब we have been like as family, the doctor has told us that you have to be patient, but lot of times क्या होता है मतलब I lose my patience and मतलब मैं उनपे like I shout at her or I just kind of मतलब बोल देती हूँ कुछ जो उनको बुरा लगता है, क्योंकि वो मेरे से काफी बड़ी हैं। तो is there a problem with me because क्यों मैं ऐसे react कर रही हूँ उनके साथ, और is there some other way I can deal with it, if you can help me in this? मैम, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें कि इरिटेशन बनती ही बनती है केयर गिवर्स की, क्योंकि आप केयर गिवर सोचता है कि ये जो जो हमारा पेशेंट है वो ये जानबूझ के कर रहा है, राइट। और अगर हम कहते हैं कि रुक जा, तो बार बार हाथ मत धो, या रुक जा बार बार सफाई मत कर, या रुक जा बार बार एक चीज को मत बोल, हाँ. तो केयर गिवर को लगता है कि वो पर्पसली ऐसा कर रहा है, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली मैम उसमें पहले आपका थॉट आता है, थॉट आता है कि बार बार मैं एक बार पहले थॉट आया फॉर एग्जांपल, और फिर उस थॉट के चलते उसने वो एक्शन जैसे हाथ धोने का कंप्लीट किया। अगर वो हाथ नहीं धोएगा तो उसको घबराहट शुरू हो जाएगी, he or she will start to have anxiety attack, और उस एंजाइटी को रिलीव करने के लिए वो हाथ धोता है बार बार। Okay. आप समझ रहे हैं? तो वो इसलिए कर रहा है ताकि वो परेशान ना हो, और आप इसलिए उसको डांट रहे हैं क्योंकि आप परेशान हो रहे हैं कि यार अभी तो एक बात बताई थी, वो बार बार मुझे क्यों पूछ रहा है, यार अभी तो एक बात उसको मना किया है कि हाथ मत धो, तो फिर वो बार बार क्यों कर रहा है। तो दिस इज सच काइंड ऑफ डिसऑर्डर जिसमें कि केयर गिवर भी बहुत परेशान रहता है और पेशेंट भी। तो केयर गिवर का परेशान होना स्वाभाविक है। उसको फिर हम यही समझा सकते हैं केयर गिवर को कि आप एक तो पहले डॉक्टर को दिखाइए, साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए, दवाई दीजिए, दवाई से ही ओसीडी ठीक हो सकती है। मुझे जहाँ तक लगता है मैंने काफी ओसीडी पेशेंट्स ठीक कर दिए हैं और हो चुके हैं काफी पेशेंट। तो वो सिर्फ दवाई ही प्राइमरी गोल है, प्राइमरी ट्रीटमेंट है ओसीडी का। और जब वो कंट्रोल हो जाएगा दवाइयों पे, तो हम एक केयर गिवर के साथ मीटिंग करके उनको समझा सकते हैं कि मैम या सर ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे थॉट आता है, ये एक पैटर्न है, जिसको हमने ब्रेक कर दिया दवाइयों से वो कम हो जाएगा, और ऐसे आप यू वोंट बी अफेक्टेड। आप भी समझ जाएंगे कि वो जानबूझ के नहीं कर रहा है, बट वो एक डिसऑर्डर है, तो इससे आपको डिस्टर्बेंस नहीं। Okay, thank you, Dr. Ankit. Is there any way I can get in touch with you, like later, अगर आप अपना नंबर या कुछ शेयर करें तो
I'll be grateful. मैम आप मेरा स्वप्निल जी थे, अगर आप उनसे टच में हैं तो उनसे नंबर ले सकते हैं। ठीक है। I can share in the group, or I will personally message you in the chat box. Can I write here in the message? Yes, yes, yes. Just wait. I've written to him. Doctor, I have one question. All of like depression is like the final culmination of the stress or anxiety that a person is going through in life, and all of Yes. us have so many stresses. So हर everyday में आप क्या recommend करते हो for people to deal with their emotions, the stress that they're facing, whether at work, in their personal life? How can you deal with it so that it doesn't end up in Yes. depression? Yes, nice question. देखो, पहले तो इससे मैं ये स्टार्ट करना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोग या कोई भी डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। डॉक्टर्स भी, वी एज अ साइकियाट्रिस्ट, इवन वी टेंड टू or we are vulnerable to develop depression because we are seeing so much of patients, and we also have stress. Like every human in the society is dealing with stress. Either it is financial stress, either it is problem with the parents, either it is problem with the spouses, whatever reason may be, stress सबको आ रहा है. The best part is वही लोग आज डिप्रेशन का शिकार नहीं हो रहे हैं जो स्ट्रेस को डील करने के जिसको तरीके आते हैं, जिसको स्ट्रेस से लड़ने के तरीके आते हैं. और स्ट्रेस से लड़ने के तरीके, देखो, आज दिन है तो कल रात, मतलब आज सुबह दिन है तो रात में रात होगी, कल फिर दिन होगी, मतलब बैड डेज आर कमिंग फॉर एवरीवन. इट इज नॉट कि आज हर किसी को खुशी मिल रही है तो खुशी में ही आप रह रहे हो. तो बैड डेज आर कमिंग फॉर एवरीवन किसी भी फॉर्म में. कुछ भी हो सकता है किसी के साथ. लाइफ इज ऑल अबाउट अनसर्टेनिटी. तो आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा. और प्रिपेयर्डनेस कैसे हो सकती है? डे टू डे स्ट्रेस, डे टू डे सिचुएशंस, डे टू डे कम्युनिकेशंस, डे टू डे रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, डे टू डे whatever problem, right? तो उन सब को आपको कैसे डील करना है, उनको कैसे प्रायोरिटाइज करना है, उससे कैसे आपको बाहर निकलना है, ये आपको सीखना आना चाहिए. और वो हो सकता है एक प्रॉपर प्रोटोकॉल से, प्रॉपर समझ से. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई स्ट्रेस आया और आपके दिमाग में वो स्ट्रेस चल रहा है, शाम को आके आपने अपने हस्बैंड से बात करी कि यार देखो यार, मेरे साथ ना ऑफिस में ये हो गया और ये हो गया, तो इसकी वजह से ये हो गया और उस बॉस ने मुझे डांट दिया. तो आपने अपने हस्बैंड से बात करी, हस्बैंड ने आपको आपकी बात सुनी और एक नॉन जजमेंटल, एक नॉर्मल सजेशन दी, जो कि आपको उस सिचुएशन में हस्बैंड के हिसाब से होना चाहिए था, आपको करना चाहिए था या आपको करना चाहिए. उन्होंने एक आपको सजेशन दिया कि आपको उस टाइम पे क्या करना चाहिए या अभी क्या करना चाहिए, कल जाके आपको क्या करना चाहिए. जब उन्होंने वो सॉल्यूशन दिया तो आपका जो रैशनल थिंकिंग है वो इरैशनल, मतलब जो पहले रैशनल थी वो अब रैशनल थिंकिंग पे और बढ़ रही है, क्योंकि आपको एक सॉल्यूशन मिला. तो मेरा इस एग्जांपल से ये मतलब है कि जब तक आप शेयर नहीं करेंगे ना एक दूसरे से, तब तक आप वेंट आउट नहीं करेंगे ना, तब तक वो स्ट्रेस आपके दिमाग से नहीं निकलेगा. वरना वो स्ट्रेस आज है, अगर आपने शेयर नहीं किया तो आज है, कल फिर दिमाग खराब होगा आपका, कल फिर आप उससे ऑक्यूपाइड रहेंगे, फिर अगले दिन एक और स्ट्रेस आ गया, फिर 2 स्ट्रेस हो गए, फिर वो भी नहीं वेंट आउट किया, फिर तीसरा स्ट्रेस आ गया. तो ऐसे करके स्ट्रेस बढ़ता रहेगा और आपके स्ट्रेस हार्मोन और कम होते रहेंगे, राइट? तो ऐसे आप परेशान रहेंगे. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप शेयर करिए, आप बात करिए. हर चीज का एक सॉल्यूशन है, चाहे वो, और हर घर में सॉल्यूशन है. सॉल्यूशन आपके हस्बैंड के रूप में है, आपके पेरेंट्स के रूप में है, एज आपके बच्चों के रूप में है. हर चीज में सॉल्यूशन है. जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे वो स्ट्रेस नहीं दूर होगा, पहली बात. दूसरी बात,
आप मैम एक डायरी बना के अपनी प्रायोरिटी टू डू लिस्ट बनाइए, अपनी डे स्ट्रक्चरिंग करिए, सन एक्सपोजर का बनाइए। जैसे मैं आपको पर्सनल शेयर करता हूँ, मैंने अपनी सेल्फ हीलिंग जर्नल लिखी है। इट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन Amazon। तो वो मैंने उन्हीं लोगों के लिए लिखी है जो कि आज दे आर फेलिंग टू कैरी आउट द डेली एक्टिविटीज या फेलिंग टू बाउंस बैक फ्रॉम स्ट्रेस। तो मैंने वो लिखी है, और वो मैंने उनके लिए नहीं लिखी है, वो मैंने ये अपने मन में करके लिखी है कि अगर मैं स्ट्रेस में हूँ तो मैं कैसे उसको फाइट करूँ। तो मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू में उसको मैंने स्ट्रक्चर किया है, और अपने आप को ध्यान में रखते हुए मैंने उसको कैरी आउट किया है, और मैं उसको डेली फॉलो करता हूँ और टिक करता हूँ। जब आप फॉलो करके टिक करते हैं टास्क कंप्लीटेड, तो ऑटोमेटिकली आपके न्यूरोकेमिकल राइज करते हैं और आपको एक फील गुड फैक्टर आता है। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइट स्ट्रेस। तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट मैं हर वीडियो में कहता हूँ, हर उसमें यूट्यूब लाइव ये मैं कहता हूँ, या अपने हर चैनल पे कहता हूँ, एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपको स्ट्रेस से लड़ने की ताकत नहीं आएगी, आपको रैशनल थिंकिंग नहीं आएगी। सारी चीजें कर रहे हैं और एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है, तो मेरे को लगता है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। देखो, जो जो दवाइयां जो काम कर रही हैं वो ही काम एक्सरसाइज कर रही। दवाइयां भी तो वही काम कर रही है ना जो आप मतलब जो एक्सरसाइज करके हो रहा है, बट एक्सरसाइज नेचुरली कर ली है, वो नेचुरली करती है। आप समझ रहे हैं? तो दवाई भी वही काम कर रही है और एक्सरसाइज भी वही काम कर रही है, लेकिन आप एक्सरसाइज चूज ही नहीं करते हैं कोई। तो एक्सरसाइज करिए, ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करिए, हाइड्रेशन मेंटेन करिए, एंड आई थिंक यू आर गुड टू गो। यू विल टॉक। Thank you. Any other question, guys? I think we don't have any more questions, Aarti. Okay, then if there's nothing else, then I again thank Dr. Ankit for taking time, even though you're not feeling well. Hope you feel better soon. And Yes, ma'am. I really apologize because I am down with 104 fever. oh my So God. yes, this session was pre-planned before only. So I had committed it. मैंने आपको कमिट किया हुआ था, इसलिए I turned up. मैं कैंसिल कर सकता था, लेकिन मेरे को लगा कि नहीं करना चाहिए। That's thank you. Thank you I hope you so feel better soon, and thank you for sharing your experience and your expertise. And we have given the number, you've given the number here. So if anybody wants to arrange a one-to-one session, they can. Right, ma'am. Thank you. There. Thank you so much. Bye. Thank you, Swapnil ji. Thank you, Aarti ji. Thank you. Thank Bye. you. Bye. Hare Krishna.